Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka. God bless each one of you. Lots of love, lots of prayers, and lots of blessings. I hope all of you remember that we are having a session today at 4:30. Great, I can see people joining in. Lots of love, lots of prayers, and lots of blessings to each one of you. Hi Aditi, how are you? God bless you. So today we are connecting here for anger management, astrologically of course, because if it is coming from me, it has to be astrologically. Hi Toral, Niharika, Sangeeta, Ashutosh, Preeti, lots of love to you. My health is fine, Sangeeta. God bless you. Anjali, hey Rupinder, lots of love. Neha, रेखा अभिमन्यु, बहुत 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 सारा प्यार सबको. थैंक्स रूपिंदर, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स. राधे राधे संगीता. अनिल छाबड़ा, लवली लवली बंगू, थैंक्स फॉर ऑल द लव. लवली लवली बंगू. रूमिल, हे आशिमा, लॉट्स ऑफ लव. शैलेश शुक्ला, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू रूपिंदर. थैंक यू रेखा. Thank you, Sapna. Yes, Niharika, I am reading your comments but not doing the readings today. So readings will be done most probably on Wednesday in the coming week, and today we are here for no, I am not doing the readings today, lovely lovely Bhangu. So I am just telling you about little bit about anger management astrologically, that basically how you can help yourself depending on your sun sign, that how you can manage your anxiety issues or fear issues or anger issues, which was like great in demand, and I told that I'll be talking about it. Thanks Prachi, God bless you. Okay, so let's start with the session because I have some 40 minutes today, and in 40 minutes I'll have to just complete everything, so I'll just try to pour you with all the knowledge which I have. प्राची आज कुछ खास नहीं पहना, सेम ओल्ड स्टोरी, द सेम मोटा मोती, and then my astrological ball, astrological ring which I love to wear, so this ring, and then my Om ring which is always there in my right thumb, and then this is a stone rose quartz, and this is my spirit animal owl with a specs or you can say with the goggles. So these are the rings which I am wearing today. Thanks Ashima that you liked it. God bless you Dolly. Yes Sharanjit, this was most asked session के fear management और anger management के बारे में कुछ बताओ. So I just have divided everything into sun sign. So you should know your sun sign. Sun sign astrologically आपको अगर western astrologically पता है, जो आप magazine या newspaper में पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप मैनेज कर सकते हो. और अगर आप दो चीज़ों का ब्लेंड कर सकते हो, अगर आपको अपनी राशि पता है विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, विच इज़ योर मून साइन, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप दोनों चीज़ें ब्लेंड कर दोगे, बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी टिप्स मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ. सो विच एनी वन एंड एवरी वन कैन फॉलो. नो मनी स्पेंडिंग, पैसा भी नहीं खर्चना, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं. और थैंक यू रूपिंदर रोजी. दिस वॉज गिफ्टेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई होप she will watch the session now or later. No, I am not reading cards today, Brad Wolf. I'll be reading that on Wednesday. Please stay connected to the page, and then we will do the readings, okay? Yes, it is a must required session in the pandemic, and I know that all of you being in the lockdown, not going out, not getting meet to people and not meeting your friends, so a lot of frustrations come on the family only, you know, जिनके बच्चे हैं, बच्चों पे निकलती है, बच्चों की पेरेंट्स पे निकलती है. So a lot of frustrations, issues people are facing. Great Rupinder that you know your sun and moon sign. Great. So if no one knows, so then you can just check it out according to the Western astrology. It's normally is 20th, 21st from every month to the next month. So and then it changes every month. And आज बताऊंगी प्राची कि अपने गुस्से को और अपनी एंग्शियसनेस को, अपनी एंग्जाइटी को किस तरह से कंट्रोल करना है. ठीक है, आज आपको वो बताऊंगी.
सो नॉर्मली देयर आर, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि सन साइन आप अपना किसी मैगजीन वगैरह से चेक कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली अगर आप गूगल करोगे दिस इज माई बर्थडे एंड व्हाट इज माई सन साइन, यू विल गेट इट फ्रॉम गूगल ऑल्सो, बट you will not get your moon sign, that is your Rashi, from Google unless and until you put your, I don't know that how authentic that can be, I have never tried that. So उसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी, आपकी कुंडली में जहाँ पर आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, दैट इज जहाँ पर आपका मून प्लेस्ड है, दैट इज योर मून साइन और दैट इज योर राशि, ठीक है। सो आप दोनों तरह से जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी आप कर सकते हो। ओके, थैंक्स किरण कंवर। ओके, सो टेलिंग यू द प्लैनेट्स कि किसके कारण से हमको ज़्यादा गुस्सा आता है या किसके कारण से हमको ज़्यादा एंशियसनेस होती है, हम डुअल माइंडेड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग माइंड होते हैं। सो मून इज द कारक ऑफ माइंड एंड इफ योर मून इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और इज विद इन द कंपनी ऑफ से राहु और केतु और द मेलेफिक प्लैनेट्स विच कॉज एंगर, तो उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी इश्यूज भी रहते हैं, आपको छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा डर भी लगता है, माइंड में एक ही थॉट को लेकर फ्लक्चुएशंस होते हैं, डबल माइंडेडनेस होती है कि ये चीज़ करूँ या वो चीज़ करूँ, और दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होती है। इवन आफ्टर टेकिंग द डिसीजन ऑल्सो यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग योर डिसीजन कि पता नहीं सही करा कि नहीं करा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन सन साइन एंड असेंडेंट आर डिफरेंट। डॉली, असेंडेंट इज डिफरेंट, सन साइन इज डिफरेंट। सो वो आपकी कुंडली में किसी दिन समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ एंगर मैनेजमेंट की बात करूंगी बिकॉज टाइम मेरे पास आज 1 घंटा नहीं है, सो आई जस्ट हैव 30 मिनट्स नाउ। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, सो मून के कारण से आपकी अगर आपका मून वीक है, अगर मून कमज़ोर है, तो आपकी लाइफ में आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको कैसे पता लगे। सो चंद्रमा कमज़ोर है आपका तो ये एंशियसनेस आपको हमेशा रहेगी, अपने आप को हमेशा, अपने थॉट्स को हमेशा आप क्वेश्चन करते रहोगे कि पता नहीं मैं सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रही, या मैंने वो चीज़ सही करी या नहीं करी। सो व्हेन यू keep on questioning yourself a lot, so that means you have got a weaker moon. So when anyone, any sign, जो भी मून की रेमेडी बता रही हूँ ये कोई भी कर सकता है, when any sign is feeling that way that I have this lot of anxiousness and this can happen any time in the life, क्योंकि कई बार क्या होता है because the moon which you have in your horoscope it keeps on moving even now also as we talk। एक तो आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा प्लेस्ड है and then it keeps on moving every day, every time, every moment, so it keeps on bringing different results। उसी तरह से हमारा हर दिन समान नहीं होता। अगर हमारी कुंडली एक बार बन गई बाय बर्थ पे, लेकिन हमारा हर दिन समान तो नहीं होता। एवरी डे इज नॉट सिमिलर टू द व्हाट वी हैड द फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज द प्लैनेट्स आर एक्चुअली चेंजिंग एंड मूविंग एंड रोटेटिंग एंड दे ब्रिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। सो कभी भी आपको लगे कि मुझे इश्यूज हो रहे हैं, यू नो एंशियसनेस हो रहा है, फियर लग रहा है छोटी छोटी बातों से, जो चीज़ है ही नहीं उससे डर लग रहा है, एंड स्पेशली आजकल के टाइम में कि बहुत ज़्यादा थॉट आ रहा है लोगों को कि कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, हम सब सही रहें। सो ये एंशियसनेस आजकल ज़्यादा बिल्ड हो रही है। सो बेसिकली चंद्रमा को स्टेबल करना मीन्स माइंड को स्टेबल करना, और चंद्रमा को स्टेबल करने के लिए आप रोज़ चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग सूर्य के दर्शन ज़रूर करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो आप चंद्रमा को भी जल चढ़ा सकते हैं टू मेक योर माइंड स्टेबल, बिकॉज चंद्रमा इज द कारक ऑफ माइंड। टू मेक योर माइंड स्टेबल यू कैन ऑफर वाटर टू द मून, दिस एनी साइन कैन डू, सन साइन कुछ भी है आपका, मून साइन कुछ भी है, लेकिन अगर फियर और एंग्जाइटी हो रही है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है अपने थॉट्स के ऊपर कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, सो यू कैन जस्ट ऑफर सम वाटर मिक्सड विद लिटिल शुगर एंड मिक्सड विद लिटिल राइस और मिक्सड विद लिटिल मिल्क और ऑल थ्री, you can offer it to the moon daily even if the moon is not there, अमावस्या है तब भी आप ये कर सकते हो बिकॉज मून कहीं ना कहीं तो है। सो अमावस्या वाले दिन भी, न्यू मून के दिन भी आप इसको कर सकते हो बिकॉज मून इज समवेयर बट इट इज नॉट विजिबल टू अस, ठीक है, तो उस दिन भी आप कर सकते हो। सो दिस विल मेक योर मून स्ट्रॉन्गर और आपके जो थॉट्स हैं वो स्टेबलाइज होंगे, आपकी एंग्जाइटी कम होगी और जो बिना किसी कारण के डर होता है वो वाला आपका कंट्रोल में आएगा, right? So this is to make moon strong, this is for every sign, this is one thing which I had to tell you. So now अब जो गुस्सा आता है हमें बहुत गुस्सा आता है, उसी के लिए हम सेशन कर रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट का सेशन कर रहे हैं। सो एंगर का कारक है हमारा मार्स और मंगल। सो मार्स इज अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। अगर किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात करें
तो वो हम मार्स से ही देखते हैं। अगर किसी को आर्मी में जाना है तो वो हम मंगल से देखते हैं कि उसका मंगल कितना स्ट्रांग है। अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, बीट एनी गेम, और ऐसा गेम कि जैसे जहाँ पे बहुत फिजिकल एनर्जी लगती है, नॉट कि बैठ के चेस खेलना, चेस कम्स फ्रॉम मरकरी एंड जुपिटर, क्योंकि वो दिमाग की चीज़ है, एंड ऑफ कोर्स मून की स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। सो अगर हमको फिजिकल स्ट्रेंथ वाले गेम की बात करनी है, बच्चे को क्रिकेटर बनना है, बच्चे को फुटबॉल में जाना है, बच्चे को टेनिस में जाना है, लॉन टेनिस में, जहाँ पे बहुत फिजिकल एनर्जी लगती है, सो हम उसका मंगल देखेंगे। इसी तरह से मंगल हम तब भी देखेंगे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मंगल हो सकता है उसके लग्न में बैठा हो, मंगल हो सकता है उसकी राशि में बैठा हो सकता है सूर्य के साथ बैठा हो। अब सूर्य ऐसा प्लेनेट है जो हमेशा ऑलवेज इन फायर। सो जब सन और मार्स की युति, यानी कि जब वो कंजंक्शन में होंगे, जब वो एक साथ में होंगे, तो इंसान के एंगर इश्यूज उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएंगे, यानी कि समझने के बाद भी कि मैं जानती हूँ मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कंट्रोल नहीं होगा। बिकॉज अगर मार्स और सन बैठ गए हैं, लग्न में आकर बैठ गए हैं, तो वो अनकंट्रोलेबल काइंड ऑफ एंगर देते हैं। सो पहली चीज़ ये कि मंगल की बात हो रही है, सो ऑफ कोर्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हनुमान जी। सो आप हनुमान जी की प्रेयर के साथ साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ उनको ये भी बोलेंगे कि मैं जानता हूँ मुझ में बहुत शक्ति है, मैं जानता हूँ मुझ में बहुत गुस्सा है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की मुझे क्षमता दें, मुझे राह दिखाएं कि मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं। सो हनुमान जी से एक छोटी सी ये प्रेयर अगर आप हमेशा करते हैं, या ट्यूसडे और सैटरडे को आप स्पेसिफिकली करते हैं, स्पेशली अगर माता रानी से भी आप यही प्रेयर ट्यूसडे या सैटरडे को आप डेली करते हैं, सो वो भी आपको बेनिफिट करेगी। नाउ कमिंग टू फॉर द संगीता, इफ यू आर आस्किंग फॉर द मून, देन ऑफ कोर्स मून को व्हाइट मेटल ज़्यादा पसंद है। सो आप सिल्वर में करो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर जाते हो तो एटलीस्ट देखने में तो स्टील बेटर लगेगा, वैसे स्टील आयरन होता है असली में, लेकिन स्टील भी ठीक है और सिल्वर भी ठीक है। कॉपर इज मेंट फॉर सन एंड मार्स, ओके। यस प्राची, सो आफ्टर योर मदर डिमाइज बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बिकॉज मून इज द कारक ऑफ मदर ऑल्सो। सो आप किसी ऐसी लेडी को ढूंढें जो कि एज में आपके मदर की एज की हो, थोड़ा उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनको छोटी मोटी कोई चीज़ देते रहना, और कोशिश करें कि वो कभी आपको पानी पिलाएं या आपको कोई भी ड्रिंक दें तो वो उनके हाथों से ज़रूर लें। सो उससे आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील एट पीस, ओके। यस गुप्ता वैदेही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस ओनली टुडे, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा मिस करा है सेशन, तो जब मैं इसको अपलोड करूंगी आफ्टर द लाइव इज ओवर, जस्ट वॉच इट प्रॉपरली। सो नाउ कमिंग टू द सन साइन स्टेप बाय स्टेप, एंड नाउ स्टार्टिंग विद द एरीज, के एरीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं टू कंट्रोल देयर एंगर और एंग्जाइटी इश्यूज। बाकी मून और मार्स वाला रेमेडी सभी कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले जो एरीज जिनका है साइन मैंने आपको शुरू में समझा दिया है सेशन के, जिन्होंने नहीं समझा है वो स्टार्टिंग का सेशन दोबारा से देख लें। Good Vaidehi, if you are listening. I can understand that everybody is having these issues, and that's why we are talking about it today, because there was a lot of requests about it, right? So साइंस मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। ओके, सो सबसे पहले जो एरीज हैं वो कोशिश करें कि कहीं से एक छोटा सा सिल्वर का ग्लास अरेंज कर लें, अगर घर पे नहीं है सो एक चांदी का ग्लास अरेंज कर लें, और उसमें से सिप करके, क्योंकि अगर आपको बहुत सारा पानी पीना है और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा चांदी का ग्लास नहीं रखना है घर पे, बिकॉज इफ you have people around and silver is little expensive metal, that depends कि अगर आप रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने साइज का, जितने साइज में आप पीते हो पानी वगैरह, उतने साइज का रख लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतने साइज का नहीं रखना चाहते हो तो एक छोटा जरूर रखो, और उस छोटे में से एक घुट पानी थोड़े देर में आप पीते रहो। उसमें से ही आप थोड़ा सा लिक्विड, कोई भी चीज़ आपने पीनी है, आपने दूध पीना है, कोशिश करो कि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लो, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर एरीज, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लो, और थोड़ा उसमें से चांदी के गिलास में से आप ज़रूर पीते रहो। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग फॉर एरीज पीपल ओनली, एरीज सन साइन ओनली, कामाक्षी सन साइन मून साइन दोनों कंसिडर कर सकते हो, दोनों को ब्लेंड कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों को ब्लेंड कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। सन साइन का रेमेडी भी कर लेना फॉलो, मून साइन का भी कर लेना फॉलो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल टिप्स बता रही हूँ और वो बहुत इजीली हो जाएंगी, ठीक है। सो आप एक तो चांदी के गिलास में पानी पीते रहे, चांदी के गिलास में दूध पिए, कुछ भी आपने ड्रिंक पीना है तो आप कोशिश करो कि आप चांदी के गिलास में पियो। दूसरा, आप सुबह उठ के एटलीस्ट फॉर अ मिनट, दिस इज फॉर एरीज लगना, बाकी एल्स एवरीवन कैन डू,
सुबह 1 मिनट उठ के ओम का चांटिंग जरूर करो. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जस्ट गिव 1 मिनट फॉर द चांटिंग ऑफ ओम. यू जस्ट हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस खींच के, और जब सांस को आप एक्सेल करोगे, इनहेल आपने करा, बहुत लंबी सांस खींची, जब व्हेन यू आर एक्सेलिंग इट तो आप मुंह से एक्सेल करोगे और ओम इस तरह से करते हुए आप एक्सेल करोगे. जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट एंड इट विल ब्रिंग वंडरफुल बेनिफिट्स टू यू. एंड कोशिश ये करें कि इवनिंग के बाद कोई भी हैवी फूड नहीं खाएं. दिस ऑल 3 टिप्स फॉर एरीज पीपल ओनली. ड्रिंकिंग इन सिल्वर ग्लास, any kind of liquid, chanting Om for at least a minute, and don't eat heavy food in the evening after the sun is set. कोशिश करो कि अपना डिनर थोड़ा अर्ली कर लो और किसी भी तरह का भारी यानी कि हैवी खाना नहीं खाओ आप इवनिंग के बाद में. नाउ अबाउट टॉरस. टॉरस सुबह उठकर सूर्य को देखें. अगर सुबह उठ के सूर्य को नहीं भी देख पा रहे हैं, अगर जल्दी नहीं उठते हो तो भी ऐसा होगा कि मैं कहूँगी नहीं सुबह उठ के करो, तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी. सो जब भी उठ रहे हो एक बार सूर्य के दर्शन करो नहाने के बाद. अगर आपसे नहीं देखा जा रहा तो एटलीस्ट जिस भी डायरेक्शन में उस टाइम सूर्य है उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो एंड डू गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, एवरीबडी नोज गायत्री मंत्र. यस, गुड शरणजीत. आप एक्वेरियस और स्कॉर्पियो दोनों की रेमेडी कर लेना. ओके, great. So Taurus people are supposed to do Gayatri mantra while looking at sun in the morning if you are not waking up at the time of when the sun is rising. So whenever you are waking up, so that time you will face the sun and you will do Gayatri mantra at least 9 times. This is for Taurus. Keep on noting down, guys. God bless you. Okay, so now coming to Gemini, that is Mithun in Hindi. Gemini people must feed green grass to cows. आपको कहीं पर इंडिया में तो बहुत इजीली मिल जाती हैं गायें, और गाय को ही खिलाना है हमको, बैल को नहीं खिलाना है. बट बैल को भी खिला लो तो अच्छा, बट गाय को जरूर खिलाना है. सो हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं. और ऐसे ना डाल के और ऐसे भाग के और फेंक के भागना नहीं है. सो क्या मैं नॉर्मली देखा है लोगों को, लोग बहुत डरते हैं एनिमल से, इवन लाइक वाइल दे आर फीडिंग डॉग्स. 1-2 बार खिलाओगे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. और ऐसा भी नहीं करना कि जैसे किसी गौशाला में गए और स्लिप कटवा दी कि इतने का चारा खिला दो मेरी तरफ से, वो भी नहीं करना. यू विल हैव टू फीड इट योरसेल्फ. दिस इज फॉर जेमिनाई लगना. अपने हाथ से खिलाना है, ये नहीं कि मुंह में डालना है, बट एटलीस्ट सामने रखो. एंड वाइल द काउ इज ईटिंग दैट फूड गिवन बाय यू, जो हरा चारा या ग्रीन ग्रास आपने दी है, टच एंड फील द काउ. उस टाइम थोड़ा उसको प्यार करो, टच करो, फील करो, बिकॉज दैट वुड बी गुड फॉर यू. सो आप अपने हाथ से खिलाओ और थोड़ा सा प्यार भी कर लो काउ को, तो वो आपको अच्छा रहेगा. दूसरी टिप जेमिनाई के लिए, कीप सम ग्रीन, लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. पालक हो गई या कोई भी किसी तरह की वेजिटेबल पानी के पास रखो. पानी के पास मतलब किसी वाटर बॉडी के पास, अपने घर में पानी के पास नहीं, बाहर जाकर किसी नदी के पास, किसी नाले के पास, जहां पर भी आपको रख सकते हो वहां पर आप जरूर रखो. वहां आके कोई ना कोई पशु या कोई ना कोई जरूर खा लेगा. सो पानी के पास आपको हरी सब्जी रखनी है. सो दिस इज फॉर जेमिनाई लगना. पीपल लगना और सन साइन और मून साइन जहां से भी आप देख रहे हो वहां से आप कनेक्ट कर लेना. ओके, नाउ कमिंग फॉर कैंसर, कर्क राशि. इनके बहुत सारे मूड स्विंग्स ऑलरेडी होते हैं, मतलब दे आर ब्लेस्ड विद मूड स्विंग्स के, फ्लक्चुएटिंग मूड स्विंग्स के. अभी ये करने का मन है और अचानक से अब मेरा मन नहीं है, यू नो. अभी तो मैं तुमसे बात कर रहा था, अब मेरा मन नहीं है. सो दे आर ब्लेस्ड विद मूड स्विंग्स. ब्लेसिंग इज अ रॉन्ग वर्ड दो, आई एम जस्ट यू नो मेकिंग फन ऑफ कैंसेरियंस. सो बहुत सारे इनके मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत सारा इनको ना सेल्फ पिटी रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, you know, why me, and kind of they find reasons to be sad. So इनको क्या करना है, they have to wear a स्फटिक माला. स्फटिक is a kind of a bead, ट्रांसपेरेंट सा होता है, ग्लास जैसा होता है देखने में, मरकरी का स्टोन है वैसे ये. और उसकी पहचान ये होती है कि when you will take it in your hand, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उससे हल्का सा ठंडक महसूस होगी. तो स्फटिक एक ठंडा तरह का बीड है, और या क्रिस्टल कह सकते हो उसको, एक ठंडा तरह का बीड है. सो द पीपल हु आर कैंसेरियंस आर सपोज टू वेयर अ स्फटिक माला, और वो किसी भी रूप में या तो देवी की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें या कृष्ण का मंत्र या देवी की किसी भी मंत्र का वो उच्चारण करें. एनी टाइम ऑफ द डे, एनी मंत्र ऑफ योर चॉइस, ईदर ऑफ देवी और कृष्णा. So you are supposed to do it. That is for Cancerians. Good afternoon, SKR. God bless you. Pooja, you are a Cancerian, Pooja Soni. So if it happens with you, I was telling about Cancerians. Yeah, it happens with them.
ओके, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ राशि विच इज वर्गो. सो इनको जो भी इनके घर में मंदिर है, या मून साइन इज कैंसर, सो दैट वुड बी हैपनिंग विद यू. बट नाउ यू आर अ स्टेबल गर्ल डॉली. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले ज़्यादा होता होगा, अब तुम मुझे लगता है थोड़ी सी स्टेबल हो रही हो बाय द इंक्रीजिंग स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ. संगीता, जहाँ तुम रहती हो वहाँ तुमने कभी भी काउस नहीं देखी है. इन दैट केस यू फाइंड अ गौशाला अराउंड योर हाउस. कहीं ना कहीं आसपास जरूर कोई ना कोई काउ शेल्टर या गौशाला मिल जाएगा. वहां पर जाकर आप ये सेम चीज कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट बाय फ्रॉम देयर ओनली. गौशाला में तो अवेलेबल रहता है हरा चारा, वहीं पर उनसे पैसे देके खरीदो, अपने हाथों से डालो. एंड वाइल दे आर ईटिंग, गौशाला में ऐसे करके रॉड्स लगी रहती है, तो वाइल दे आर ईटिंग यू कैन टच देयर हेड. तो वहां से आप सिर को छू सकते हो. डिपेंड करता है किस टाइप की गौशाला है. नहीं, रोज देने की जरूरत नहीं है. स्पेशली अगर वेंसडे को दो SKR तो ठीक है. और अगर आप वीकली कर लेते हो एक बार तो भी बहुत अच्छी बात है. वीकली करना भी बहुत अच्छी बात है. एंड ऑफ कोर्स यस. अच्छा, लियो नहीं करा मैंने, लियो नहीं करा. मैं भी करती हूँ. आई एम सॉरी, आई जस्ट जम्प टू कैंसर फ्रॉम वर्गो. तुम लियो अच्छा, या फिर लिख रही होगी, विच इज अ गुड थिंग टू डू. यस, आई फेल्ट दैट डॉली. हाँ, सो रोज नहीं करना है. वेंसडे को हफ्ते में एक बार कर लो, नहीं तो महीने में एक बार कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है. एक बार करके देखो, यू विल फील द डिफरेंस. और स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार करो, एंड आफ्टर यू फील दैट द थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग फॉर मी, तो फिर आप महीने में एक बार पे शिफ्ट हो जाना. यस संगीता, यू फाइंड इट. ओके, सो आई वॉज लेफ्ट विद लियो. लियो जनरली ही अग्रेसिव होते हैं नेचर के, बिकॉज सन का एक ही साइन है, दैट इज लियो, और सन से रूल हो रहा है. सो ऑफ कोर्स द एग्रेशन हैड टू बी देयर. सो लियो जनरली ही थोड़े से गुस्से वाले होते हैं. Gemini, I have done, you will have to see the session later after I upload it. That's I'm talking to Alexa. Alexa, how cute is that? Alexa, play music. God bless you. Okay, Kamakshi, you are a Virgo. I heard that. So Alexa, you will have to listen to the session after I upload it, because Gemini I already have done. Okay, I have done that in the beginning because it's as a third number sign, and now we are on the fifth number. So talking about Leo, so they are generally aggressive by nature, and it is very good for them if they wake up early in the morning, because the sun is their ruling planet, and if they see this rising sun, so they will see the calm sun, the calmness of sun also, because normally sun is with a temper. It is always with a temper of its own, that I am the ruler, I am the one who is giving light to everyone. So that's how Leos basically feel. So if you are a Leo, so it is very good that if you see the calmness of the sun also, that would be great for you. And if you wear a silver ring in your index finger, so if you wear a silver ring in your index finger, that would be good for you. But make sure that the ring must not have any joints. There should be no joint in your silver ring. You can wear the silver ring either in your index finger. Girls are supposed to wear the rings in their left hand, and the boys are supposed to wear rings in their right hand, either in the index finger or in the thumb. Make sure that your ring doesn't have any joint. So if you see this ring of mine, this doesn't have any joint, so it is just open. So you just can take this thing of silver, and you just can, without any joint, you just can do this. Okay, so your ring, Cancerians should wear a ring in their index finger or in their thumb, made out of silver without any joints. And they must also, Leos must also thanks Ashima, God bless you. Leos must also keep on sipping water throughout the day. That will keep them calm. They must also keep on, good if you are wearing a silver kada, but kada must be having a joint. So make sure that, आपने देखा होगा ना, ऐसे कड़े आते हैं जो सिर्फ ऐसे करके, हम ऐसे करके टाइट कर लेते हैं और ऊपर से वो खड़े रहते हैं. कई बार उनके आगे एक मुंह सा बना होता है शेर जैसा, वो भी आते हैं मार्केट में. सो दैट काइंड ऑफ रिंग और दैट काइंड ऑफ कड़ा वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, विच इज नॉट हैविंग एनी जॉइंट. ओके, yes, you can wear kada, but the ring in the thumb or index finger would be more beneficial. But yes, kada is also good, because silver metal, anytime it just, yeah, no joint, without any joint. Wonderful. So silver metal itself calms you down, itself cools you down. Okay, so and Leos must also keep on sipping little water in the daytime throughout the day, and must also practice deep breathing. So बीच बीच में लंबी सांस लेते रहें Leos. Okay,
Thanks, Aarti. God bless you. Okay, now coming to Virgos, Kamakshi. Yes, in boys in right hand and girls in their left hand. Okay. So Virgos are supposed to sit in the place of worship. घर में जो भी जगह है मंदिर की या जहाँ पर भी बैठकर आप थोड़ा टाइम भी आपको लगता है कि आप अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, सो घर में ऐसी जगह ज़रूर बनाएं. अगर नहीं है तो, अगर है तो उसमें थोड़ा टाइम बैठें ज़रूर. सो डू सिट एट द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड in the morning and in the evening, at least twice in a day. So that's for Virgos, and it is very good for them. So if they wear a yellow thread in their right hand, अपने right hand में एक पीले रंग का धागा अगर Virgos पहनेंगे तो वो उनके लिए काफ़ी beneficial रहेगा. And keep on drinking water, it is important for them also. And always go for a little stroll, हल्का सा घूमे फिरे ज़रूर शाम को, लेकिन जब भी वो घूमने जाएं 2 सिप पानी के वो पी कर जाएं. तो दिस इज़ फॉर वर्गोस. अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप पे बैठना है मॉर्निंग और इवनिंग, राइट हैंड में पीले रंग का धागा पहनना है, थोड़ा सा घूमना ज़रूर है और घूमने जाने से पहले 2 घूंट पानी ज़रूर पी के जाएं. Yes, do both the remedies, that would be helpful for you. Yes, Sagittarius is in queue. How are you, Archa? God bless you. Yes, I am coming to Sagittarius. थोड़ा सा लेट में आता है ना, तो अभी थोड़ा सा रुको. अभी 7 नंबर पे 9 नंबर है Sagittarius. Okay, 7 is Libra. They are not usually angry people. इनको ज़्यादा गुस्सा नॉर्मली नहीं आता, लेकिन अगर आप गुस्सा दिला दो तो फिर इनसे कंट्रोल भी नहीं होता. So their anger is like normally they don't get angry, but yes, when they are angry, they are really angry, and their anger can actually harm their health also. अगर इनको गुस्सा दिलाएं हम तो ये इनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो जाता है. तो कोशिश करो कि लिब्रन्स खुश मिजाज लोग होते हैं, उनको खुश मिजाज ही रहने दो. बट अगर उनको बारी बारी उनको स्टिमुलेट करा जा रहा है, उनको बारी बारी छेड़ा जा रहा है, तो वो गुस्सा एकदम से हो जाते हैं और उनका गुस्सा ऐसा होता है जो सीधा का सीधा इनकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है. सो लिब्रन्स यानी तुला राशि को क्या करना चाहिए? दे मस्ट ऑफर सम वाटर टू अ पीपल ट्री ऑन अ सैटरडे. सैटरडे को पीपल ट्री को पानी दें और वहीं बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करें. सो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. और इनके लिए एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे मस्ट नॉट पाइल अप देयर वर्क. अपना काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने दें. जब काम बहुत सारा पाइल अप हो जाता है तो इनकी एंशियसनेस बढ़ जाती है और फिर एंशियसनेस के कारण ही इनको ज़्यादा गुस्सा आता है. एंग्जाइटी इज द कॉज ऑफ देयर एंगर, एंड वंस दे आर एंग्री इट इफेक्ट्स देयर हेल्थ. Yes, all are well, Archa. It's good that you are good too. God bless you. Okay, so Librans, आपको पीपल ट्री को पानी देना है सैटरडे को, वहीं पर बैठ के मेडिटेट करना है. अपने काम को ज़्यादा पाइल अप नहीं होने देना है. एंशियसनेस होती है उससे और एंशियसनेस से आपको गुस्सा आता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट लिब्रन्स आर सपोज टू डू. सलूजा जेनी, आई एम नॉट टू श्योर कि आपका घर किस कंडीशन पे है, मतलब शुरू हुआ है या नहीं हुआ है. सो देन आई जस्ट गिव यू अ रेमेडी अकॉर्डिंग टू दैट. या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है, वी हैव टू सी द इश्यूज के फाइनेंशियल इश्यूज आर नॉर्मली कामिक. हम अगर एक चीज़ करना चाह रहे हैं और फिर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, सो देयर मस्ट बी सम ऑब्स्टेकल. सो वो ऑब्स्टेकल को फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द इशू विच इज स्टॉपिंग फॉर योर हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड. शुरू हुआ है, रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है. सो आई मस्ट नो द स्टेट टू गिव यू द रेमेडी. Yes, Kamakshi, you are Libra by rising sign. Yes, I also relate to my rising sign a lot. Financial issues है, so you must ask for the remedy which is related to your financial issues. So financial issues solve होंगे तो घर बनेगा. And I have given a number which I have given many times. Please start using the money magnet number, which is 199621147. Keep on chanting it digit by digit. You will be pulling the money from the universe to you. 199621147. Please keep on chanting it digit by digit, and also write this number on your left arm directly on your skin with a green color pen. Use a green color pen to write down the number directly on your skin. That's one thing. Second thing is this: please writing abundance checks, which I have explained many times in different videos. I'll just make another video and I'll share it with you. You will have to write down one check ऑन एवरी न्यू मून. न्यू मून कल को था, जो अमावस्या के बाद का नेक्स्ट दिन होता है, उसके आप करने से, रेगुलरली करने से आपके फाइनेंशियल इश्यूज धीरे धीरे आप देखोगे कंप्लीटली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे.
ओके, सो दिस इज, यू स्टार्ट डूइंग इट नाउ. एंड अबंडेंस चेक का मैं ना एक वीडियो करके, सिंपल ओनली फॉर अबंडेंस चेक, आई जस्ट डू वन वीडियो एंड आई विल जस्ट पोस्ट इट, अ 5-10 मिनट्स वीडियो, बिकॉज जो पहले करा है मैंने अपने पेज पे वो मैंने काफ़ी चीज़ों के और के साथ करा है. सो अबंडेंस चेक का मैं वीडियो अलग से कर दूंगी एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल. ओके, गॉड ब्लेस यू सलूजा जेनी. आई नॉर्मली रिप्लाई वेन एवर आई सी द क्वेश्चन और एनीथिंग. ओके, गॉड ब्लेस यू. सो आई जस्ट हैव टू वाइंड इट अप फास्ट फास्ट फास्ट. सो लिब्रंस आर डन. ओके, सो नाउ शिफ्टिंग टू स्कॉर्पियोज. स्कॉर्पियोज बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत सारा गुस्सा होता है. मेरी 2 बहनें हैं, दोनों स्कॉर्पियोज हैं. जस्ट इमेजिन माई स्टेट. और दोनों मुझसे बड़ी भी हैं. सो स्कॉर्पियोज बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो बहुत उनमें गुस्सा रहता है हमेशा. मतलब कहते हैं ना, नाक पे गुस्सा रहना. सो वो स्कॉर्पियोज होता है और वो लियोज का भी होता है नॉर्मली. सो लियो और स्कॉर्पियो काफ़ी गुस्से वाले साइन है. इनका क्या करना होता है, इनको अगर स्कॉर्पियोज नॉर्मली ज़्यादा पिंक, येलो या ऑफ वाइट या वाइट कलर पहने तो वो उनके लिए, उनको हमेशा सूट डाउन करता रहता है. सो स्कॉर्पियोज आर, Pooja is a Scorpion. Okay, Sapna, you are telling me that. You are also 3 sisters, Sangeeta. Good. Okay, so Scorpions अगर ज़्यादा पिंक या फिर येलो या फिर ऑफ वाइट या फिर वाइट कलर ज़्यादा पहने तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है. दूसरा एक और रेमेडी है स्कॉर्पियंस के लिए, बिकॉज ज़्यादा गुस्सा होता है, थोड़ा सा अच्छी सी रेमेडी है उनके लिए, दैट यू आर सपोज टू कीप ड्रिंकिंग वाटर इन अ ग्रीन कलर्ड बॉटल इन द सन. 11 दिन तक एक ऐसी बॉटल में जो हरे रंग की हो उसमें पानी रखें. उस पानी को रात को वहां से हटा लें, मून के टाइम पे वहां से हटा लें. 11 दिन तक उस पानी को वहां पर रखें और 11 दिन के बाद उस पानी को आप 1-2 बूंद तक लेते रहें. यानी कि यस 1 स्पून और 2 स्पून, जस्ट 1 सिप और 2 सिप उसको लेते रहें. यस अर्चा. सो वो कभी कभी होते हैं, लेकिन जब वो, अभी तुम्हारे डैड की बात कर रही हो, सो दिस इज व्हेन यू आर सीइंग हिम एट दिस एज. तो जब वो यंग हो गए ना, उनसे पूछना कितना गुस्सा आता होगा उनको. शादी से पहले पूछना कितना होता है. शादी के बाद तो तुम्हारी मॉम ने शांत करा होगा उनको, आई एम श्योर ऑफ. रूबिल, यू आर ऑल्सो स्कॉर्पियन. सो ग्रीन कलर की बॉटल में 11 डेज तक सूर्य में, सन में पानी रखना है. रात को मून के टाइम पे वहां से हटा लेना है और फिर उसको सिप सिप करके आपने 11 डेज के बाद लेते रहना है. उस पानी की बॉटल को हमेशा वुडन प्लेटफॉर्म पे रखना है. हमेशा उसको वुडन प्लेटफॉर्म पे रखें. इवन अगर सन में रख रहे हो तो भी कोशिश करें कि नीचे उसके वुड रहे, किसी स्टूल पर या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखें जहाँ पे लकड़ी हो नीचे. और उसको जब वो पानी चार्ज हो जाए 11 डेज के बाद, तो भी उसको वुडन प्लेटफॉर्म पर ही रहने दें. ओके, सो उसको आप 11 दिन के बाद आप उसको कंज्यूम करना शुरू कर सकते हो. एंड आफ्टर 11 डेज यू कैन एटलीस्ट हैव 2 बॉटल्स, जिसको आप रोटेशन में आप बनाते रहो. थैंक्स फॉर रिप्लाइंग टू अदर्स ऑल्सो SKR फॉर शेयरिंग द नॉलेज. या यू कैन वॉच द सेशन लेटर सिमी, बिकॉज आज ना मेरे पास टाइम, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा नहीं है. सो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 5-7 minutes एंड आई विल हैव टू कवर अप अदर साइंस ऑल्सो. अदरवाइज आई वुड हैव रिपीटेड फॉर यू. गॉड ब्लेस यू. Okay, so now coming to Sagittarians, Archa. So they are not much angry people, but they are very egoistic. एंग्री नहीं होते, बट ईगो बहुत सारा है और एटीट्यूड बहुत सारा है. सो उस ईगो और उस एटीट्यूड को अगर कोई छेड़ दे या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करे तो फिर गुस्सा आता है. अदरवाइज दे आर वेरी नॉलेजेबल, गिफ्टेड नॉलेजेबल. लेकिन अगर इनको एंग्री हो रहे हैं ईगो के कारण या अपने एटीट्यूड के कारण, जहाँ पे इनका ईगो और इनका एटीट्यूड को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सो वहाँ पर इनको गुस्सा आता है. एंड दे आर गिफ्टेड नॉलेजेबल पीपल ऑल्सो. लेकिन अगर इनको अपना एंगर को कंट्रोल करना है, बिकॉज ये इनको अंदर से नॉलेज आती है. वेरी गुड डॉली दैट यू आर ऑल्सो सेजिटेरियस. सो अगर इनको अंदर से नॉलेज, यू नो, दे फील इट दैट दे नो इट मोस्ट ऑफ द टाइम. They feel it that they know it, half of the things. Good, Saluja Jenny. Your friend is egoistic, SKR. Okay, so now what happens is that what calms them down is gaining more knowledge, because they are here on the earth to gain knowledge. So when you learn new things, keep on learning, keep on reading, keep on studying. So when they learn new things, when they get to be in the company of intelligent people, they are fine, they are cool, because learning is very important. So the moment you feel angry, just open a book and start reading. That will really calm you down. And if you
keep that student alive in you. Always keep that student alive in you. Keep on learning new things, so that will keep their anger really really away from you. Talk to people who are very intelligent, whom you think from them you can learn. So be in the company of such people. That is going to help you a lot. So that's for Sagittarians. Yes, Archa, I knew it will come from you. God bless you. Okay, so now coming to Capricorns. Capricorns are the people who are they always give priority to self, which is a wonderful thing. But as a tip, I'll just tell Capricorns or Makar Rashi that they must stay away from red color. Wear white more often, or off white or cream color more often, and they are also supposed to wear स्फटिक माला. मैंने स्फटिक माला कैंसेरियंस के लिए भी बताई है एंड केप्रिकॉन्स के लिए भी बता रही हूँ. कोयल इज ऑल्सो सेजी, ब्यूटिफुल. पूजा सोनी, व्हाट यू हैव आस्क्ड, आई कैन जस्ट सी द क्वेश्चन मार्क्स इन द मैसेज. क्या क्वेश्चन था, बोलो. Kiran Kanwar Nathawat, you have asked me in a comment in some other post also, and मैंने उस तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करा है, एंड आई हैव रिप्लाई टू दैट कमेंट जहाँ पे तुमने जॉब के लिए मंत्रा पूछा है, एंड आई हैव रिप्लाई टू इट आई थिंक 2 days बैक. मैंने 2 दिन पहले रिप्लाई करा है उसको, एंड मंत्रा उसमें मैंने लिखा हुआ है प्लीज गो टू योर कमेंट एंड सी माई रिप्लाई ओवर देयर, बिकॉज देयर आर सो मेनी कमेंट्स ऑन द पेज, सो एट टाइम्स यू डोंट गेट द नोटिफिकेशंस फ्रॉम द फेसबुक. सो दैट इज वाई. मे बी अपने कमेंट को जाके देखो, उसमें मेरा रिप्लाई है और वहां पे मैंने मंत्रा दिया हुआ है. यस, सेजिटेरियंस को एडिक्शंस इजीली हो जाती हैं. वैसे ये साइन जुपिटर का है, बट दे गेट इनटू एडिक्शंस अ लॉट. स्फटिक, स्फटिक की माला. स्फटिक कांच जैसे देखने में मोती होते हैं और उसकी माला होती है स्फटिक. SFATIK, स्फटिक. यस, किरण कुमार नथावत, किरण कंवर नथावत. ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द केप्रिकॉन्स. रेड कलर कम पहनना है, ऑफ वाइट, व्हाइट, क्रीम कलर ज्यादा पहनने हैं. स्फटिक की माला पहननी है केप्रिकॉन्स को, एंड स्पेशली दे कैन यू नो इफ योर मदर इज देयर अराउंड यू, तो उनके हाथ से सुबह उठकर थोड़ा पानी या थोड़ा दूध जरूर लें. उनके हाथ से लेंगे तो आपका एंगर कंट्रोल में रहेगा. दिस इज फॉर केप्रिकॉन्स. टेक सम water or some milk from your mother every morning, so that would be helpful. If your mother is not around, so whenever you are meeting her, so that time you can take. Okay, so Aquarians, they get irritated और एजिटेटेड सून. उनको इरिटेशन जल्दी हो जाती है. मतलब एक बार किसी को कोई चीज कह दी और फिर सामने वाला उस चीज को रिपीट करता है, तो दे गेट रियली इरिटेटेड कि एक बार बता दिया आपको, आप दोबारा क्यों कर रहे हो. एंड दे आर नॉट यूज टू ऑफ सेइंग सॉरी एट ऑल. सॉरी बोलना एक्वेरियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि दे आर सुपर समझदार पीपल और जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, और उनको एक अपनी स्पेस चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने का इनसे नहीं होता है. सो व्हाट दे आर सपोज टू डू, दे आर सपोज टू कलेक्ट द कॉइन्स विच कम विद अ होल. दे आर कॉइन्स इन द मार्केट जो एक उनमें छेद जैसा रहता है. कॉपर के भी आते हैं ऐसे कॉइन, आयरन के भी आते हैं, सिल्वर के भी आते हैं, किसी भी मेटल में मिल जाएं. सो एक्वेरियंस आर सपोज टू कीप दैट कॉइन्स, और उनको काले धागे में किसी भी तरह से उसको गले में उन कॉइन्स को पहन ले तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा. और एक एक्वेरियन बिकॉज सैटर्न का साइन है, तो सैटर्न की एक रूट होती है जो कि पहाड़ों में बहुत कॉमनली मिलती है. तुमको पता होगा आशिमा, बिच्छू बूटी जिसको कहते हैं. बिच्छू बूटी करके एक पौधा आता है, कभी पहाड़ों में घूमने जाओ, वेरी इजीली अवेलेबल एक वीड है, या फिर आप मार्केट में भी देखोगे तो जहाँ पे ये पूजा का सामान मिलता है वहां भी मिल जाएगी. बिच्छू बूटी की रूट, जड़ ऑफ बिच्छू बूटी, वो अगर वो अपने गले में काले धागे में पहन लेते हैं एक्वेरियंस, तो उनके लिए अच्छा रहेगा. सो दैट फॉर एक्वेरियंस. ओके, गॉड ब्लेस यू. नाउ कमिंग टू द पाइसियन विच इज द लास्ट साइन. इनका एंगर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ना. पता है ना आशिमा, आई न्यू कि तुमने जरूर सुना होगा. थैंक यू SKR, गॉड ब्लेस यू. ओके, टॉकिंग अबाउट द पाइसियंस, इनका छोटा सा गुस्सा होता है. मतलब गुस्सा आएगा और फिर चला जाएगा, लेकिन जब आएगा तो एकदम बहुत ज्यादा. सो शॉर्ट लिव्ड एंगर दे हैव, छोटा सा, बट
एट द सेम टाइम दे डोंट लाइक टू कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स. जो चीज़ जैसे चाहिए जब चाहिए वैसे ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है. इनके लिए अच्छा रहेगा कि ये कॉपर की रिंग सिल्वर या थंब में पहने. एंड अगेन द सेम रूल विल अप्लाई, नो जॉइंट्स इन द रिंग. And for girls it is left side, left hand, and for boys it is right hand. Copper या silver का ring in the index finger or in the thumb without any joints will help this thing, Pisceans. And they also will be benefited by drinking coconut water daily. Have a little coconut, चाहे तो कोकोनट छोटा सा खा लो. अगर हमेशा फ्रेश नहीं ले सकते हो तो घर में ड्राई वाला भी रख दोगे. सो ड्राई कोकोनट थोड़ा सा खा लो, नहीं तो कोकोनट वाटर पियो, बहुत अच्छा है उनके लिए. फ्रेश कोकोनट खाओ, वो भी बहुत अच्छा है उनके लिए. सौंफ खाना, मिश्री खाना और कोकोनट खाना पाइसियन के लिए बहुत अच्छा है टू काम डाउन देयर एंगर इश्यूज. डेडली कॉम्बिनेशन सपना, गुड वन. So we have covered all the 12 signs and about their anger and fear and anxiety issues, and try this and do let me know how it worked for you. God bless you guys. I'll take your leave now. It was great connecting with each one of you. Stay connected to the page and I'll let you know that what all I'm doing in the next live session. Lots of love. God bless you. Stay safe and I'm always there with each one of you. Librans are done. Aarti Talreja. I am just uploading the video after the live is over and you can watch it later. God bless you. Thanks for being here. Bye bye. Bye bye. आज 2 फ्लाइंग किस ले ली. Bye bye.